Hello everyone. First, I would like to welcome all of you to the India's first 100% free complete GATE course. This initiative is initiated by TechCube faculties. I am Suraj Singh Chand, Assistant Professor in Institute of Technology, Gopeshwar. I am CSIR NET qualified. I have 6+ years teaching experience. Present time I am pursuing PhD from NIT Uttarakhand. I have the topic numerical methods to teach you, and this is my lecture number 1. And my medium will be English and Hindi both. So, student, let's start numerical methods. In numerical methods, there are 4 major parts of this topic. First one is algebraic and transcendental equation. Second one is interpolation. Third one is numerical integration, and last one is initial value problem. Mostly question are asked from this topic in GATE exam. Okay, and one more thing you should keep in your mind. In numerical method we always deal with approximate solution. यानी कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, whether that problem from algebraic and transcendental equation, or from interpolation, or from numerical integration, या फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। क्लियर? तो हम कोई भी सॉल्यूशन आता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो हम हमेशा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के ऊपर डील करेंगे, नॉट ऑन एग्जैक्ट। क्लियर? तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं गेट में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. Okay. Sometimes we have the numerical integration, simply integration in engineering and science. Let us suppose we have integration from 0 to 1, 1 upon 1 plus sine e to the power x to the power 1000 and dx. ठीक है, if you solve this problem by general method, it will be very complicated and lengthy. Okay, but if you solve this by numerical methods, you will reach very close to exact solution. यानी कि हम अगर इसका सॉल्यूशन न्यूमेरिकल मेथड से करें तो हम एक्चुअल जो वैल्यू आएगी इस इंटीग्रल की, ठीक है, उसके हम बहुत ही क्लोज होंगे. ठीक है, तो दैट विल बी वेरी क्लोज एंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल. ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में देयर आर 3 मेथड्स इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. First method is trapezoidal rule. Okay, second one is Simpson's 1/3 rule. Okay, and fourth one is Simpson's 3/8 रूल. ओके, तो मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा ट्रेपेजॉइडल रूल से. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव द इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b and fx dx. okay, this is nothing but this is the area of the region under the curve fx. Let us suppose this curve is fx. Okay, and this point, this curve is bounded in interval ab. जो भी इसकी लोअर एंड अपर लिमिट रहेगी इस पे बाउंडेड है कर्व. क्लियर? तो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है, ये क्या है? द एरिया ऑफ दिस रीजन अंडर दिस कर्व. दिस इज कर्व fx. ठीक है, अब आते हैं हम ट्रेपेजॉइडल रूल पे. ठीक है, तो let us suppose this is the curve fx and this interval is a and this point is a and this point is b. Okay, the value of the function corresponding to a is fa and the value of the function
f corresponding b, that is fp. क्लियर, ये हो गया, ठीक है. इफ आई ज्वाइन दिस पॉइंट एफ ए टू एफ बी, अगर हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, किसी स्ट्रेट लाइन से, तो इट विल फॉर्म ट्रेपजॉइड. ओके, तो हमारे पास एक ट्रेपजॉइड है, ए बी एफ बी एफ ए एंड ए. दिस इज द ट्रेपजॉइड. ट्रेपजॉइड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समलंब. ओके, तो ट्रेपजॉइडल का स्टेटमेंट, ट्रेपजॉइडल जो रूल है उसका स्टेटमेंट ये है कि ये जो इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो ये एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ दिस रीजन अंडर द कर्व एफ एक्स विल बी approximately equal to the area of this trapezoid. Okay, now our aim is to find the area of this trapezoid. तो इसका एरिया कितना होगा, b minus a by 2, okay, and f a plus f b. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी एंड डी एक्स विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि एरिया ऑफ दिस ट्रेपजॉइड ए बी एफ बी एफ ए एंड ए. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट एरिया होगा. क्लियर. अब हम अगर इस इंटरवल ए बी को बहुत सारे सब इंटरवल में ब्रेक करते हैं, n इक्वल सब इंटरवल में ब्रेक करते हैं, तो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इसका, अगर हमने इस इंटरवल को बहुत सारे इंटरवल में ब्रेक करने के बाद कितनी इस इंटीग्रल की वैल्यू आती है. ठीक है, सपोज हम वी हैव द इंटीग्रेशन a to b fx and dx. ओके, एंड मैंने इसको ग्राफिकली इस तरीके से, दिस पॉइंट इज a यानी कि लोअर लिमिट, एंड दिस पॉइंट इज b दैट इज अपर लिमिट. क्लियर. एंड मैं इस इंटरवल को, ठीक है, n सब इक्वल सब इंटरवल में ब्रेक करता हूँ, यानी कि मैं एक बार फिर से सुन लीजिए, आई डिवाइड दिस इंटरवल इनटू n इक्वल सब इंटरवल. ओके, तो let us suppose this point is x1, this point is x2, this point is x3, okay, this point is x4, this point is x5, up to so on. This point is xn minus 1, this point is xn. b को मैंने क्या ले लिया, xn के इक्वल ले लिया, और a को मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को x0 को इक्वल ले लिया. ठीक है, नाउ हमारे पास फंक्शन क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन है ये. ठीक है, इसका corresponding the value of the function corresponding fx0, let us suppose that value is f0. okay, and the corresponding value of the function, the value of the function corresponding x1, that is f1. okay, the value of the function corresponding to f2, x2, that is f2. similarly corresponding to f3, that is f3, x3, that is f3. okay, the corresponding value of f, ठीक है, corresponding to x4, that is x4, x5 के corresponding कितनी होगी, f5, and xn minus 1 के corresponding कितनी होगी, n minus 1, और xn के corresponding कितनी होगी, xn. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो सब इंटरवल है, यहाँ पे नोट कर लेने ये बात कि लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज इक्वल टू h. ठीक है, यानी कि ये मैं जो इंटरवल ले रहा हूँ, सब इंटरवल, यानी कि x0 से x1 इसकी लेंथ कितनी h, x1 से x2 की लेंथ कितनी h, ऐसी x2 से x3 की लेंथ कितनी h. सिमिलरली द लेंथ ऑफ द इंटरवल xn minus 1 to xn, that is h. clear. Now our aim is to find the form
ट्रेपजॉइड। ओके, तो मैंने x1 से f1 को यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। f2 से मैंने x2 को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ओके, इस तरीके से मैंने ये ज्वाइन करा दिया, ठीक है। नाउ वी हैव द ट्रेपजॉइड। अब मेरे पास जो ट्रेपजॉइड बन रहे, देखो मैंने f0 से f1 को मैंने ज्वाइन कर दिया, f1 से f2 को कर दिया, f2 को मैंने f3 से कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। f3 से f4, f4 से f5, सिमिलरली f5 से f6 और अप टू n-1, fn-1 से fn को मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ट्रेपजॉइड, फर्स्ट ट्रेपजॉइड कितना है, एक ट्रेपजॉइड मेरे पास हो गया x0, x1, f1, f0 a, x0, ठीक है। तो t1, ट्रेपजॉइड t1, दिस इज ट्रेपजॉइड t2, दिस इज ट्रेपजॉइड t3, दिस इज ट्रेपजॉइड t4, सिमिलरली t5 और दिस विल बी tn, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रेपजॉइडल रूल, this integral or the value of the integral fx dx or the area of the region under this curve fx, ठीक है, ये कितना होगा, this will be approximately equal to the sum of area of each trapezoid, ओके। यानी कि T1 का एरिया, ठीक है, ट्रेपजॉइड T1 का एरिया प्लस T2 का एरिया प्लस T3 का एरिया प्लस T4 का एरिया प्लस T5 का एरिया एंड लास्ट वन द एरिया ऑफ Tn, ठीक है। तो T1 का एरिया कितना होगा, h/2, ओके, बिकॉज दिस लेंथ इज h, x0 से x1 की लेंथ कितनी, h/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा f0 प्लस f1, ठीक है। सिमिलरली द एरिया ऑफ द ट्रेपजॉइड T2 h/2, बिकॉज लेंथ इज सेम, तो मैं यहाँ पे इसलिए h लिख रहा हूँ, ठीक है, f1 प्लस f2। सिमिलरली द एरिया ऑफ T3, ओके, h/2 f2 plus f3, okay. Similarly the area of the T4 h/2 f3 plus f4, okay. Similarly the area of T5 h/2 plus into f4 plus f5, clear, or plus up to the area of the ट्रेपजॉइड Tn, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे ट्रेपजॉइड आए, मैं लास्ट वाला लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, h/2, ओके, h/2 and fn-1 plus fn, इज इट क्लियर, ठीक है। और अगर मैं इसको सबको सम करूं तो h/2 विल बी कॉमन, h/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यू विल सी दैट f1, f2, f3, f4 and up to fn-1 will appear twice। देखो f1 इस टर्म में भी आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी आ रहा है, f2 सेकेंड टर्म में भी आ रहा है, थर्ड टर्म में भी आ रहा है, ठीक है। f3 थर्ड में भी आ रहा है एंड फोर्थ में भी आ रहा है, f4 फोर्थ में भी आ रहा है एंड फिफ्थ में भी आ रहा है। सिमिलरली fn-1 nth में भी, n टर्म में भी आएगा, और इससे पहले जो टर्म बनेगा h/2 fn-2 प्लस fn-1 इसमें भी आएगा, n-1 वाले टर्म में भी आएगा, ठीक है। और f0 एंड fn विल अपीयर सिंगल टाइम, ओके। तो मैं यहाँ पे f0 लिख दे रहा हूँ, और जो ट्वाइस, जो दो बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 2 into f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू fn-1, ओके, एंड प्लस fn, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके पास एस्टेब्लिश हो गया। तो यानी कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन
fx dx. In other word, the approximate value of this integral will be equal to this value. ठीक है, तो ये आपका ट्रेपजॉइड का कंपोजिट फॉर्मूला हो गया. दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कंपोजिट फॉर्मूला फॉर ट्रेपजॉइडल रूल. क्लियर. अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं जो गेट में आ रखे हैं. क्लियर. I think this question came in GATE exam in 2014. Okay, we have the question using the trapezoidal rule and dividing the interval of integration into 3 equal sub-interval. Okay, the definite integration from -1 to +1 mod of x dx is. ठीक है, अब हमको इस इंटरवल की इस इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रेपजॉइडल रूल में, जो हमारे पास इंटरवल है यानी कि -1 से लेके, इसका सॉल्यूशन होगा -1 to 1. क्लियर. -1 से 1 तक इंटरवल है. ठीक है, इसको हम कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? वी विल ब्रेक this interval in 3 equal sub intervals. Okay, so length of each sub interval will be upper limit यानी कि 1 minus lower limit यानी कि -1 upon number of sub interval. ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने, हाउ मेनी इंटरवल आर देयर, सब इंटरवल आर देयर 3, तो 2/3. ओके, तो इट मींस वी हैव द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज h, दैट इज 2/3. यानी कि हम इस होल इंटरवल -1 से 1 को, ठीक है, 3 इक्वल इंटरवल में ब्रेक करेंगे. तो फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड पॉइंट इज दिस एंड थर्ड इंटरवल विल बी दिस. तो ये पॉइंट कितना होगा -1. ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझो, अगर ये x0 है एंड दिस विल बी x1, दिस विल बी x2, तो x1 कितना होगा यहाँ पे, x1 कैन बी रिटन एज x0 दिस वैल्यू और प्लस दिस लेंथ. लेट अस सपोज दिस लेंथ इज h, तो प्लस h. ओके, एंड व्हाट विल बी x2 कैन बी रिटन एज x0 प्लस दिस लेंथ यानी कि प्लस 2h. इन अदर वर्ड हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x1 प्लस h. ठीक है, तो दिस लेंथ, ये h की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी है, यहाँ पे 2/3. ठीक है, तो दिस लेंथ विल बी -1 प्लस 2/3, दैट इज -1/3. ओके, and this point will be -1/3 plus h यानी कि -1/3 plus 2/3, that is 1/3. क्लियर. अब हमारे पास पॉइंट है x0 that is equal to -1, x1 that is equal to -1/3, x2 that is equal to 1/3, and last one is x3 that is equal to 1. Okay, the corresponding value of the function, the value of, in other word, the value of the function corresponding these points. ठीक है, तो x0 हमारे पास फंक्शन कितना है, we have the function fx equal to mod of x. ये वाला फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास fx का रोल प्ले करेगा. ठीक है, तो मोड x, तो f0 की वैल्यू कितनी होगी, x0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मोड ऑफ x0, तो मोड ऑफ x0 दैट इज मोड ऑफ -1, दैट इज 1. ठीक है, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये किसके इक्वल होगा, f0 की इक्वल. ठीक है, दिस वैल्यू विल बी f0. f1 की वैल्यू कितनी होगी, f1 मींस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1, तो दिस विल बी इक्वल टू mod of -1/3, mod of -1/3, that is 1/3. ठीक है, similarly the value of f2 means the value of the function at x2,
this will be mode of 1/3 यानी कि 1/3 and last one is f3, that is f3, that is the value of f at x3, that is mode of 1. Okay, that is 1. Now using these value in trapezoid rule, or one thing you should keep in your mind here, first term is f0 and last term is f3. Okay, तो यहाँ पे जो हमने कंपोजिट फॉर्मूला बताया था, इन दिस फॉर्मूला f0 is first term and last term is fn. ठीक है, these both first and last term are appearing single time, remaining terms are appearing twice. Okay, तो हमारे पास कितना बन जाएगा ये, the value of the integration -1 to 1 a mode of x dx will be equal to approximately, okay, h by 2. ठीक है, h by 2 into f0 first term plus f1 2 into f1 plus 2 into f2, यानी कि यहाँ पे f1 एंड f2 जो बीच के टर्म्स होंगे वो ट्वाइस, दो बार अपियर होंगे. क्लियर, तो 2 into f1 plus 2 into f2 और लास्ट टर्म इज f3. नाउ पुट दीज वैल्यूज इन 1, तो ये आ जाएगा कितना, ये इन दिस इक्वेशन. ओके, तो h की वैल्यू 2/3 और होल अपॉन 2. क्लियर, f0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू f1 की वैल्यू कितनी है मोड ऑफ -1/3, तो मोड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो 1/3 प्लस 1/3 और प्लस कितना आ जाएगा 1. ठीक है, तो इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू you will get answer 1.11111. ठीक है, तो your answer will be 1.11111. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा. अब इस क्वेश्चन को और एनालाइज करते हैं, तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा. ठीक है, we have the integration -1 to 1, okay, mode of x dx. अगर मैं इसको जनरल वे से अगर सॉल्व करूं, ठीक है, तो फर्स्ट आई हैव टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ द एफ एक्स, यानी कि मोड एक्स की जो वैल्यू है उसको डिफाइन करना पड़ेगा. ओके, तो मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स इक्वल टू एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0. क्लियर, तो यहां पे मैं अगर इसको जनरल वे से सॉल्व करूं, तो आई हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रेशन -1 to 1, ठीक है, into two parts. Okay, first part will be -1 to 0 and plus 0 to 1. ओके, हम यहाँ पे मोर देन 2 पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 ही पार्ट में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरवल हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे. ठीक है, छोटा सा इंटरवल है -1 से 1. ठीक है, मैं इसको अगर चाहूँ तो -1 से लेके और कितना -0.5 तक से भी ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से, और फिर 0.5 से 0. ठीक है, बट ये दिस विल बी वेरी लेंदी, तो सो मैं इसको दो ही पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ. क्लियर, तो यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैंने -1 और 1 लिमिट को मैंने -1 to 0 एंड 0 to 1 में इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. ठीक है, तो व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 0, यानी कि 0 से छोटा है जब x, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी -x, तो ये यहाँ पे -x पुट कर दी इंटू dx. ओके, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो then the value of the function is x, this one, तो x dx. okay, now integrate this value by general way. okay, तो ये आ जाएगा -x²/2 और this value is -1 to 0 and plus integration x²/2 from 0 to 1. तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे you will get the answer 1. ठीक है, अब इसका जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं अभी, we have the function
वी हैव द इंटरवल -1 to 1, ठीक है। और मैं अगर मोड ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करूं, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मोड ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमको क्या क्या पूछ रहे हैं, ये एरिया, दिस एरिया हमको क्या पूछ रहा है, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, अप्रोक्सीमेट एरिया, ठीक है। बट हमको यहाँ पे क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि इसको 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है। तो एक हमारा पॉइंट आ रहा था यहाँ पे -1/3, एक आ रहा था +1/3, ठीक है। देयर आर 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या करते हैं, हम ट्रेपेजॉइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक देखो, एक ट्रेपेजॉइड यहाँ पे ये फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी कितनी आ रही, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वल टू 1, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.111, क्लियर। तो जो एरर आएगी वो कितनी आएगी, एब्सोल्यूट एरर that will be एग्जैक्ट वैल्यू 1 minus 1.1111, इसकी मोड वैल्यू दैट इज 0.1111, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू इसमें कम आ रही है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, 1.111 आ रही है, ठीक है। दैट इज ग्रेटर देन एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये जो 0.11 का जो डिफरेंस आ रहा है, जो एरिया में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज दिस एरिया, ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है ना, दिस विल बी 0.1111 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्राफिकली हो गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में, इन सेम क्वेश्चन, अगर हमारे पास, हमने तो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने जो इंटरवल था उसको 3 इक्वल सब इंटरवल में ब्रेक किया। बट अगर इसी क्वेश्चन में अगर 2 सब इंटरवल में ब्रेक करना होता है तो कैसे बनता हमारे पास, इस तरीके से आता फिर वो -1 और 1, और यहाँ पे आता 0, क्योंकि 2 सब इंटरवल यहीं से हो रहे हैं इक्वल, ठीक है। तो तब जो ट्रेपेजॉइडल की हेल्प से आता है, यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइड फॉर्म नहीं होता, फिर ये सेम एरिया से, इस सेम एरिया से क्या करता, कंसाइड कर लेता। तो आंसर तब क्या होता हमारे पास, आंसर जो होता वो सेम आता हमारे पास, आंसर जो है दोनों का आंसर बाय ट्रेपेजॉइडल रूल एंड वैल्यू बाय एग्जैक्ट वैल्यू बोथ विल बी कंसाइड, ठीक है। इन केस इफ वी हैड टू गिवन, इफ वी हैड 2 सब इक्वल इंटरवल, ओके। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द integration from 2.5 to 4 ln x dx calculating using the trapezoidal rule with 5 sub intervals, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आई थिंक 2014 का क्वेश्चन है इन डिफरेंट ब्रांच, ओके। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कोई भी ट्रेपेजॉइडल रूल का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या, इंटरवल, जो हमारे पास इंटरवल 2.5 एंड 4, इस इंटरवल को मेंशन्ड सब इंटरवल में ब्रेक करना है। तो वी हैव टू ब्रेक दिस होल इंटरवल इनटू 5 सब इक्वल इंटरवल, ओके। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो एक इंटरवल ये आ गया, दूसरा दिस वन, थर्ड वन इज दिस, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज x1 x2 x3 and x4, this is x4 and this is x5 and this point, initial point is x0, ठीक है। तो हमारे पास now we have 5 sub interval, length of each sub interval, what will be the length of each sub interval, upper limit, same formula, upper limit minus lower limit upon number of sub interval, that is 5,
ओके, तो 1.5 अपॉन 5 दैट इज 0.3. तो लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी 0.3 यूनिट. ओके, तो if x0 is 2.5 तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1. तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x0 प्लस h, यानी कि x0 प्लस h यानी कि 0.3. तो 2.5 में 0.3 को ऐड कर लो तो 2.8. सिमिलरली x2 विल बी 2.8 प्लस 2.3 यानी कि 3.1. सिमिलरली x3 विल बी 3.4, 3.7. x4 की वैल्यू क्या होगी 3.7 और प्लस 0.3 ऐड करोगे तो यू विल गेट 4. ठीक है, तो नाउ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वी हैव द फंक्शन fx जो है हमारे पास वो कितना है lnx. व्हाट इज lnx? lnx is nothing but this is the log of x in base e. ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर कभी भी आपके पास lnx आता है तो इट मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस इज log x बेस ई. हम बेस ई में काम करेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे बेस ई है. क्लियर, ln मीन्स बेस ई में. क्लियर, तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन lnx एट x0 दैट इज 2.5. तो ये कितना आ जाएगा ln 2.5. दिस इज लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू f0. ओके, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f1 की वैल्यू सॉरी f1 की वैल्यू x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगी ln 2.8. क्लियर, सिमिलरली f2 विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2 ln 3.1. Similarly, f3 will be ln 3.4. f4 will be ln 3.7. Okay, f5 will be ln 4. ये 4 आ जाएगा. Clear? Now we have first term is f0 and last term is f5. These both term will appear single time and remaining term f1, f2, f3, f4 will appear twice. Now the approximate value of the integration from 2.5 to 4 lnx dx will be equal to approximately h by 2. Okay, first term f0 plus 2 into f1 plus f2 plus f3 plus f4 and last term will be f5 which will be appear single time. Okay, now calculate these values, put these values in this equation. h कितना है 0.3 by 2. okay, f0 की वैल्यू कितनी है f0 की वैल्यू कितनी है ln 2.5 plus 2 into f1 will be ln 2.8, f2 will be ln 3.1 plus ln 3.4 plus ln 3.7 and last one will be ln 4. If you calculate these values, you will get the value 1.75332671. So this will be the your answer. Okay, 1.75332671. ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता कि ये जो क्वेश्चन ये जो आंसर आएगा इसको अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो. ओके, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक और अप टू 5 सिग्निफिकेंस डिजिट आफ्टर डेसिमल. ठीक है, इफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन ओके, अगर आपके पास इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो या अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल लिखो, तो तब कितना होता, तो वी हैव द वैल्यू 1.75332. ठीक है, एंड 671 है. क्लियर,
तो 1.7533 और 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ठीक है। तो फिफ्थ प्लेस में क्या है 2, ओके, एंड सिक्स्थ प्लेस में कितना है 6, एंड सिक्स प्लेस में 6 है, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो हम 2 को क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो देन आंसर वुड बी 1.75333। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द डेफिनेट इंटीग्रल from 1 to 3 1 upon x dx is evaluated using trapezoidal rule with step size of 1. Okay, the correct answer is, this is the question of fill in the blanks. Okay, solution, we have the interval 1 to 3, ठीक है, और हमको यहाँ पे दे रखा है कि जो स्टेप साइज h की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, दैट इज 1। तो वी हैव द फॉर्मूला लेंथ ऑफ each sub interval that is h equal to upper limit 3 minus 1 upon number of सब इंटरवल, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाता है हमारे पास h इक्वल टू 2 अपॉन, h की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 2 अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल, लेट अस सपोज दैट वैल्यू इज n, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू 2। क्लियर। यानी कि बाय टेकिंग स्टेप साइज 1 or in other word by taking length of each sub interval that is h equal to 1, we can break this whole interval from 1 to 3 into 2 sub equal interval। ओके, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 plus that is x1 and this point will be x0 and this will be x2, ठीक है। तो हम स्टेप साइज 1 लेके इस होल इंटरवल को 2 ही पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर ये 1 है तो स्टेप साइज 1 लेके कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x0 प्लस h, यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 2, एंड 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। नाउ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1 अपॉन x, ओके, fx इक्वल टू कितना हमारे पास 1 अपॉन x, तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x0 that is f0 will be 1 upon x0 that is 1 upon 1 that is equal to 1, ठीक है। Similarly the value of the function at x1 that is f1 equal to 1 by 2 and f2 equal to 1 by 3, ठीक है। Now we have first term is f0 and last term is f2 and middle term is f1, okay। तो f0 and f2 will appear two times, or sorry single time, okay, first term and last term, first term f0 and last term f2 will appear single time and f1 will appear twice, okay, in formula। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा from 1 to 3 1 point x dx, this value will be approximately equal to h by 2 f0 plus 2 f1 एंड प्लस f2, ओके। तो h की वैल्यू कितनी 1 बाई 2 और f की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 और प्लस कितना आ जाएगा 1 बाई 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 और 2 प्लस 1 बाई 3, ये आ जाएगा 7 बाई 6, यानी कि 1 इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6, ओके, 1.1666 आ जाएगा, ठीक है।
दिस वैल्यू विल बी 1.16666 इस तरीके से आ जाएगा 1.16666 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ये वैल्यू अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक करो, इसको ये वैल्यू को कैलकुलेट करो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक और अप टू 5 significant digit after decimal, तो then answer would be 1.1666 और last one will be 7, fifth digit will be 7, so this would be your answer. Okay, now summary of this topic, इस टॉपिक की समरी क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट अबाउट ट्रेपजॉइडल रूल, द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेपजॉइडल रूल, द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेपजॉइडल रूल इज अप टू 1 डिग्री पोलिनोमियल. ठीक है, दैट इज ट्रेपजॉइडल रूल गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट अप टू लीनियर कर्व. ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई लीनियर कर्व है, मैं इसको ज्योमेट्रिकली आपको बताता हूँ. ठीक है, कैसे करना हमको. लेट अस सपोज हम फंक्शन क्या लेते थे, कोई भी कर्व ले लेते थे. ठीक है, हमको क्या करना है कि ये लीनियर कर्व लेना है. एक हम लीनियर कर्व मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया. लेट अस सपोज वी हैव द फंक्शन ax plus b whose integral value we will have to define. Okay, ax plus b from the limit a1 to b1 and dx. ठीक है, what is the meaning of this integral? This is nothing but this is the area of the region under this straight line. So let us suppose this straight line is ax plus b is this. ठीक है, and this value is a1. okay, and this value is, ये पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा b1. clear, this value is f b1 and this value would be will be f a1. ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रल मीन्स क्या होगा, द एरिया ऑफ द रीजन अंडर दिस लाइन. ठीक है, ये वाला रीजन होगा. अगर हम ट्रेपजॉइडल के रूल से इसको सॉल्व करते हैं तो वी हैव द लाइन, ये लाइन आ गई. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू a1 होगी, ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी b1. ओके, हम इसको n सब इंटरवल में ब्रेक करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 अप टू n और ट्रेपजॉइड बनेंगे. तो ये देखो सेम आ रहा है, ये जो एरिया होगा ये देखो कंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे. एरिया ऑफ दिस ट्रेपजॉइडल इज दिस, ट्रेपजॉइड इज दिस, एरिया ऑफ द सेकंड ट्रेपजॉइड इज दिस. ठीक है, एरिया ऑफ द थर्ड. तो ये जो स्ट्रेट लाइन के अंडर जो एरिया आ रहा है वो क्या होगा, इस एरिया के साथ कंसाइड करेगा. ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ द ट्रेपजॉइड t1, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ t2 इस तरीके से आएगा, प्लस एरिया ऑफ t3 प्लस अप टू एरिया ऑफ ट्रेपजॉइड tn. ठीक है, तो इन सब का जो एरिया का सम आएगा वो क्या आ जाएगा, ये पूरा रीजन ही तो आ जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये रिजल्ट आया कि जो ट्रेपजॉइडल रूल होता है ये हमेशा लीनियर कर्व के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है. ठीक है, अब इसके बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं. जैसे सिंपल सा, कभी कभार गेट में जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जैसे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम 10 to 1000. ओके, एंड हमारे पास कर्व है x plus 1. ओके, और dx. ठीक है, बाई what will be the approximate value of this integral by trapezoidal rule, by taking n इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ सब इंटरवल 1 लाख. ओके, 1 लाख इसमें क्या लेने, नंबर ऑफ सब इंटरवल. तो अगर सपोज इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है
ठीक है, तो स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 लाख इंटरवल करते करते तो 3 घंटे हमारे ऐसे ही स्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है कि दिस इज नथिंग बट दिस इज लीनियर कर्व, ये लीनियर कर्व है हमारे पास। ठीक है, अब वी नो दैट द ट्रेपेजॉइडल रूल गिव्स द एग्जैक्ट सॉल्यूशन अप टू लीनियर कर्व, यानी कि जो हम जनरल मेथड से अगर इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे और ट्रेपेजॉइडल की हेल्प से उसको अगर सॉल्व करेंगे तो बोथ आंसर विल बी कंसाइड। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पे, इसको सिंपल सा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे फ्रॉम 0 to 1000 में और dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा x²/2 प्लस x और फ्रॉम 0 to 1000। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ the value of the integral, approximate value or the value of the integral by trapezoidal rule। तो सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे, सेम वैल्यू, बोथ वैल्यू विल बी कंसाइड। क्लियर। अब इसमें सेकंड आता है, इसमें सेकंड नोट आता है, इसमें नोट सेकंड। ठीक है, द एरर इन, अब देखो अगर हमारे पास लीनियर कर्व है, ठीक है, लीनियर कर्व है तो उसके लिए तो ट्रेपेजॉइडल रूल सेम रिजल्ट देगा। बट अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक कर्व आ गया, कोई नॉन लीनियर कर्व आ गया, ठीक है, नॉन लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर, नॉन लीनियर कर्व आ गया और कोई जैसे एक्सपोनेंशियल कर्व आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल कर्व आ गया, ठीक है, और लॉगरिथम कर्व आ गया, तो देन उसके लिए एरर कितनी होगी। ठीक है, तो जो एरर आती है हमेशा इस टाइप के कर्व के लिए, नॉन लीनियर कर्व के लिए जो एरर आएगी दैट विल बी, मैक्सिमम जो एरर आती है दैट विल बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, b - a⁻3/12 n², where n is number of subinterval and m2। ठीक है, ये मैक्सिमम एरर होगी। Here what is m2? m2 is nothing but this is the max value of the second derivative, okay, of fx at point t। यानी कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a to b इस टाइप का है, ठीक है, तो जो fx का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है a b इंटरवल में। क्लियर, तो दिस इज m2। n is nothing but n is number of सब इंटरवल, ठीक है, और a एंड b क्या है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो एरर आती है, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सब इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, 1/n² के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यानी कि यहां से क्या डिडक्शन आता है कि अगर नंबर ऑफ इंटरवल अगर इंक्रीज होते हैं तो जो एरर जो होगी वो हमारी कम आएगी, यानी कि डिक्रीज होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ इंटरवल अगर डिक्रीज होते हैं तो एरर क्या होगी, हमारे पास जो एरर जो आएगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और इसी बेस में एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझाता हूं आपके पास। कभी कभार जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, fx इक्वल टू है जैसे सपोज 1/x² + 1, ठीक है, और इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 1 और dx। इस इंटीग्रेशन को आपको ट्रेपेजॉइडल के रूल से सॉल्व करना, मैं जस्ट इसको समझा रहा हूँ, ये प्रीवियस जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने उसको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके पास है fx इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1 1/x² + 1 और dx। ठीक है, और एक में आ रखा है n इक्वल टू, हम अगर इसको ट्रेपेजॉइडल की रूल हेल्प से करते हैं बाय टेकिंग n इक्वल टू 10। ठीक है, TR मेथड से करना है, यानी कि ट्रेपेजॉइडल रूल से करना हमको। ठीक है, एक बार तो हमने n इक्वल टू 10 में करना है, एक बार n इक्वल टू 15 में करना है। ठीक है, 15 में इसको नंबर ऑफ सब इंटरवल लेके इसको करना है। ठीक है, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपको कि जो एरर होगी किस में कम आएगी। ठीक है, यानी कि
which approximate value, ठीक है, by taking n equal to 15 and by taking n equal to 10, which approximate value of this integral, which approximate value of 0 to 1 1 upon x square dx, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो बाई टेकिंग n इक्वल टू 10 एंड n इक्वल टू 15, ठीक है, द result the value which approximate value of this integral by taking n equal to 10 and एक बार में क्या ले लिया हमने n equal to 15 will be very close to exact result, will be very close to exact value of integral of given integral, ठीक है, इंटीग्रल। तो ये जस्ट मैं इस ये स्टेटमेंट को समझा रहा था इसको एग्जांपल के थ्रू कि किस कौन सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जब हम n की वैल्यू 15 लेंगे या फिर n की वैल्यू 10 लेंगे, किस अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, ठीक है, रिजल्ट जो होगा विल बी वेरी क्लोजर टू एग्जैक्ट वैल्यू। तो जिसमें हम n की वैल्यू ज्यादा लेंगे, वी नो दैट एरर जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n स्क्वायर। जहां पे n की वैल्यू ज्यादा आएगी, नंबर ऑफ सब इंटरवल ज्यादा आएगी, वहां पे एरर जो होगी वहां पे कम आएगी, ठीक है। n अगर इंक्रीज हो रहा है तो एरर डिक्रीज होगी, एरर डिक्रीज होगी यानी कि जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है, एग्जैक्ट वैल्यू एंड माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, इसकी मोड वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कम आएगी, ठीक है। जो ये एरर आएगी इट विल बी वेरी क्लोजर टू एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो जो एरर आएगी इसमें कम आएगी, तो यानी कि जिसमें हम n इक्वल टू ज्यादा ले रहे हैं यानी कि 15 ले रहे हैं, उसमें हमारी एरर कम आएगी, तो corresponding that value will be very closer to exact value, ठीक है। तो हमको ये दो रिजल्ट मैंने बताए, these both result are very important, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस एक्यूरेसी वाला और सेकंड वन इज दिस, ठीक है, कि यहाँ पे ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्लियर, कि एरर ऑलवेज proportional to 1 upon n square, as n increases error will decrease, as n decrease तो error will be increase, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, ठीक है, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस सिम्पसन्स 1/3 रूल, ओके। Till then, take care and enjoy mathematics, and thank you so much.